Hi everyone. Let's talk about RBI 3-month planner. Now, we all know that RBI is about anywhere between 3 to 5 months away from us, and therefore it becomes imperative that we have a 3-month planner in hand and we're also executing it simultaneously. This is for students who are starting now, or for students who probably have already started, then resulted in some kind of a break, entered in some kind of a break, and now want to begin again. Understand that planner is just the starting point. If you don't execute it, then it's of no use. Therefore, my job is to give you a planner. My job is also to help you execute it through my enrolled courses, but otherwise your job is to actually study. If you don't study, if you don't execute it at your own end, there's no use of collecting these strategies and planners for yourself. It's not going to help you in any way possible. Okay. There is also an Excel timetable along with this planner, and you might be feeling that let me just download the Excel file and just use that. But again, it will not be helpful if you don't understand the Excel file. My job here is to help you understand the Excel file, understand the timetable properly, because then you will not use it, and there's no point in downloading it, holding it if you can't use it. So watch this entire video so that you can use that planner. You can actually understand it and use it well if you feel that you need this kind of a planner or timetable for your studies starting now. Okay, let's begin. Before the Excel, before the actual timetable, let me talk about certain things, because otherwise the Excel timetable will be very less useful for you. We will try and understand what all is to be studied. हम लोग सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, what all is to be done, what all is not to be done. We'll try and understand that also, and how it is to be done. We'll look at it through a overall planner here and then a detailed Excel planner down the line. क्या क्या आपको करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए. नंबर 1 इज द सिलेबस, नंबर 2 इज करंट अफेयर्स एंड नंबर 3 इज प्रैक्टिस टेस्ट. आपको इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के रखना है. इफ यू एवर fail to follow any of these three, then you are directly affecting your own chances of getting selected. You have to create the right combination of all these three every week. That is the gist of the timetable, and that is the key to the timetable. If you don't follow that key, you will never be able to open the lock to your success in this exam or any other competitive exam. तो सबसे पहला है, लेट मी रिपीट, सिलेबस. सबसे सेकंड है करंट अफेयर्स, और थर्ड है प्रैक्टिस टेस्ट. एंड यू हैव टू क्रिएट द राइट मिक्स ऑफ दीज थ्री इन ऑर्डर टू क्रिएट द राइट पेस्ट्री और द राइट आइसक्रीम और द राइट लड्डू, वट एवर यू वांट टू कॉल इट. ओके, अदरवाइज उसमें टेस्ट नहीं आएगा, फिर जो भी खाओगे उसमें मज़ा नहीं आएगा और एग्जाम क्लियर नहीं होगा. सिलेबस में दो मेजर पार्ट्स हैं, फेज 1 एंड फेज 2. ये सारा सिलेबस का पार्ट होता है. क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, फाइनेंस, मैनेजमेंट, ईएसआई, and then English essay writing. We'll have a look at all of these parts of the syllabus when we have a look at the timetable. Detailed timetable में ये सब discussed है. फिर करंट अफेयर्स के 4 पार्ट्स हैं. देर इज स्पॉटलाइट, देर इज RBI 247, PIB 247 एंड टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स. ओके, उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिस टेस्ट. प्रैक्टिस टेस्ट में सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस टेस्ट हैं और फिर फुल मॉक्स हैं. ये दो मेजर चीज़ें हैं. सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस टेस्ट आपको हर हफ्ते लिखने हैं, एवरी वीक, एंड फुल मॉक्स आपको तब लिखने हैं जब आपका सिलेबस पूरा हो गया है, यू हैव ऑलरेडी गेन इनफ कॉन्फिडेंस एंड you've written enough subject wise test, then you, before the examination, you start writing full mocks. Revision is a key area which follows a part of both current affairs as well as syllabus. जो भी आप पढ़ रहे हो, whether you're reading the syllabus or you're reading current affairs, if you don't revise it, you will never be able to remember it. If you can't remember it, you will not be able to apply it in the exam. If you can't apply it in the exam, नंबर नहीं आएंगे. तो एग्जैक्टली रिविजन करना कैसे है वो भी समझना ज़रूरी है. करंट अफेयर्स और सिलेबस दोनों का रिविजन करना है और हर हफ्ते करना है, एवरी वीक. But the major key point here is that the revision has to be active revision. I have created enormous videos on YouTube about active revision. Please search on it, go through those videos so that you understand how active revision is actually done. क्योंकि पैसिव रिविजन करोगे तो करना आसान होगा रिविजन, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा. Okay, it's like eating a lot of carbs and then complaining in the gym
कि यार मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही है, मेरा स्टैमिना क्यों नहीं बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप कार्ब्स खा रहे हो। आपको प्रोटीन खाना ही पड़ेगा, आपको मसल बिल्डिंग करना है तो प्रोटीन चाहिए बॉडी को। Active revision is similar. Passive revision is like carbs. You can eat a lot of it. You can spend entire 4-5 hours doing passive revision, but it will not help you. एक्टिव रिवीजन आधा घंटा करोगे वो भी काफी है। ओके, क्या नहीं करना है? स्पेंडिंग 2 hours every day on current affairs. Please make sure that every day, now this doesn't mean that you spend only 1 hour on current affairs. आपको current affairs में टाइम देना है, बट मेरा ये बड़ा मानना है, नाउ यू कैन रिजेक्ट इट और यू कैन एक्सेप्ट इट, बट मैं ये मानता हूं कि आप एक दिन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आपका ब्रेन कुछ भी याद नहीं कर पाएगा। बेटर है कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो मैक्सिमम, 2 चीज़ें पढ़ो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मत पढ़ो। अब अगर ये 2 चीज़ों में करंट अफेयर्स नहीं आता है, लेट्स से आप क्वांट पढ़ रहे हो और साथ में फाइनेंस पढ़ रहे हो, तो करंट अफेयर्स की जगह नहीं है, तो आप करंट अफेयर्स मत पढ़ो। बट शाम को, इवनिंग में, when you're tired, when you're done with both these subjects, you're done with your targets of the day, then spend a maximum of 1 hour on current affairs. I would recommend कि जो भी वीडियोस मैं, मेरी टीम या मैं डाल रहा हूँ करंट अफेयर्स के ऊपर, डेली जो इवनिंग में क्लासेस होती हैं, जस्ट लिसन टू देम। आपको काफ़ी लर्निंग वहीं से हो जाएगी। एंड देन टेक आउट 1 entire week or 2 entire weeks in a month just for current affairs. उसमें आप और कुछ नहीं पढ़ रहे हो, बस करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, उसमें आपका कवरेज ज़्यादा होगा। डेली 2-2 3-3 घंटे बैठोगे और 2 सब्जेक्ट्स और पढ़ रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन, दैट इज़ हाउ आई यूज टू स्टडी, एंड दैट इज़ व्हाई आई कुड क्लियर सम एग्जाम्स लाइक SBI, and that is what I have seen a lot of students doing and then clearing the examination. जितने भी टॉपर्स मैं निकाल पाता हूँ उनको मैं यही बार बार समझाता हूँ और ट्रेन करता हूँ कि भाई आपको करंट अफेयर्स डेली नहीं पढ़ना है, आप नहीं एक्चुअली उसको याद रख पाओगे। तो हफ्ते में पूरे दिन पढ़िए, पूरा हफ्ता पढ़िए, तब उसका आउटकम या आउटपुट ज़्यादा निकलेगा। ठीक है ना? तो अगर पढ़ना है डेली थोड़ा बहुत, तो वीडियोस के थ्रू या ऑडियोस के थ्रू पढ़ो और उनको सुनो rather than reading it, because you're already tired, you will not be able to read that much. That is number one thing that you can't do, you do not have to do. Then the second is skipping the syllabus for current affairs. Yesterday some students wanted to meet me, and they did meet me. I gave them an appointment, I talked to them for I think 2 long hours, we spent a lot of time together, and दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई टोल्ड देम। उन्होंने बोला सर हमें 3-4 महीने में तैयारी करनी है और 2025 में ही एग्ज़ाम निकालना है, RBI निकालना है, NABARD निकालना है। मैंने उनको बोला निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते हो, बट आपको कुछ फंडामेंटल्स याद रखने हैं, आप उनको स्किप नहीं कर सकते। सबसे पहला फंडामेंटल उसमें यही है कि आप सिलेबस को स्किप करके करंट अफेयर्स पे जाओगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आपको पहले सिलेबस खत्म करना है और जल्दी खत्म करना है, बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ टाइम एनी मोर। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम और लगाओगे, यू माइट फॉल आउट, यू माइट फील दैट आई कैन नॉट डू इट। ठीक है ना? और इसीलिए आपको पहले सिलेबस कवर करना है, करंट अफेयर्स बाद में उठाना है। दैट इज वन ऑफ द की एरियाज। नो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस now, because you have limited time, you cannot wait to complete the syllabus and then start with your practice of answer writing. You have to do it simultaneously. तो answer writing practice आपको करते रहना है साथ साथ, you cannot skip it. Current first, syllabus later, this is the opposite of the second one that I told you, ये नहीं करना है। Reading one type of current only, मतलब आप एक ही चीज़ पढ़े जा रहे हो बार बार, खाली स्पॉटलाइट पढ़े जा रहे हो और सोच रहे हो मेरा करंट अफेयर्स पूरा हो गया। मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स इज अ मिक्स ऑफ दीज 4 थिंग्स। जब तक ये चारों नहीं करोगे तब तक करंट अफेयर्स इज नॉट कंप्लीट। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेल मी सर मैंने स्पॉटलाइट पढ़ा था 1 साल का, फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने बस स्पॉटलाइट कवर किया, और मैगजीन्स को जब तक कंबाइन नहीं करोगे तब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा। रिविजन नहीं कर रहे हो, स्पेशली एक्टिव रिविजन। डेली टेस्ट्स दे रहे हो, वीकली टेस्ट नहीं दे रहे हो। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको नहीं करना है, डेली टेस्ट नहीं देने हैं, वीकली टेस्ट देने हैं। क्योंकि डेली टेस्ट में क्या होता है, आप एक आंसर लिखोगे खुश हो जाओगे, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे खुश हो जाओगे, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला है। एग्जाम में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे फेज 2 में, फेज 1 में 200 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वांट में 30 क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर राइटिंग में आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं 6 में से। तो यू हैव टू गेट यूज टू इट कि मैं जब लिखने बैठूँ तो मैं 4 आंसर लिखूँ, मैं जब MCQ सॉल्व करने बैठूँ तो मैं क्वांट के एक साथ 30 करूँ।
जब मैं फेज 2 के क्वेश्चंस करने बैठूं तो एक साथ 30 करूं, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल डेली, इट इज ओनली पॉसिबल वीकली। ये मैं स्टूडेंट्स को करवा रहा हूं, अभी पिछले 3 महीने से चल रही है साइकिल, जहाँ पे उनको हर हफ्ते दो तीन टेस्ट दिए जा रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली डूइंग इट रेगुलरली, आई नो कि वहीं से मैं रैंक निकाल पाऊंगा अपने फाइनल रिजल्ट में, ठीक है ना। 8 hours of studying and 0 hours of planning. It doesn't mean that you do the opposite, 8 hours of planning and 0 hours of studying, but आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी ज़रूरी है। इवन टुडे मैं हर संडे को सोने से पहले पूरे वीक का प्लान कर लेता हूँ कि मैं मंडे टू सैटरडे क्या करने वाला हूँ। आई हैव अ गूगल कैलेंडर, मैं गूगल कैलेंडर में सब कुछ डाल लेता हूँ टाइम के साथ कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक ये करूँगा। आई ऑल्सो गिव माई सेल्फ ब्रीदर्स, जहाँ पे मेरे को सोना है या कुछ जिम जाना है या रिलैक्स करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो आई गिव माई सेल्फ दोज ब्रीदर्स, बट आई हैव अ प्लान फॉर द एंटायर वीक कि पूरे हफ्ते मुझे क्या करना है, एंड देन आई ट्राई एंड स्टिक विद दैट प्लानर, बिकॉज अदरवाइज मैं ड्रिफ्ट करता रहूंगा इधर उधर, कुछ भी करता रहूंगा, फायर फाइटिंग करता रहूंगा, और एक्चुअल में मैं कुछ नया नहीं कर पाऊंगा। यू हैव टू डू द सेम, यू हैव टू प्लान अ लिटिल बिट विच इज इनफ, एंड देन एग्जीक्यूट दैट प्लान थरली। ये टाइम टेबल उस प्लानर की तरह ही है, ठीक है ना। हाउ टू डू इट, इसमें आप एक सिलेबस मैंने आपको बताया सबसे पहले कवर करना है, तो सिलेबस में सबसे पहले आप फेज 1 और फेज 2 का कॉम्बिनेशन बनाइए। डू नॉट ट्राई टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ फेज 2 टुगेदर और ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ फेज 1 टुगेदर। cover one subject of phase 1 with one subject of phase 2, that is what I would recommend. क्वांट के साथ मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा जाता है, बिकॉज क्वांट इज अ लिटिल डिफिकल्ट, मैनेजमेंट इज कंपैरेटिवली इजियर। रीजनिंग के साथ फाइनेंस अच्छा जाता है, बिकॉज फाइनेंस इज अ लिटिल डिफिकल्ट, रीजनिंग इज मोर लॉजिकल। और इंग्लिश और ईएसआई ये पेरिफेरल सब्जेक्ट्स हो गए जो आप बहुत जल्दी कम टाइम में खत्म कर सकते हो, गिवन दैट यू आर अबव एवरेज और एवरेज इन इंग्लिश। ओके, मैनेजमेंट को, बिकॉज नाउ वी हैव लेस टाइम, तो मैनेजमेंट को आप 10 दिन से 14 दिन के बीच में खत्म करने की कोशिश करोगे, फाइनेंस को 15 दिन में, ईएसआई को 10 दिन में। दिस इज व्हेन यू आर गिविंग 5 days पर वीक टू दीज सब्जेक्ट्स। अब इस मैनेजमेंट को जो 10 दिन में खत्म करना है उसमें क्वांट भी आ गया, हो सकता है पूरा नहीं कर पाओ, फिर से रिपीट करेंगे। द की इज रेपिटेशन, मतलब आपका अगर एक बार में पूरा सिलेबस खत्म नहीं भी हुआ, मैनेजमेंट 10 दिन में 75% हुआ, 70% हुआ तो भी चलेगा, ड्रॉप इट, पिक अप द नेक्स्ट सब्जेक्ट, देन ड्रॉप द नेक्स्ट सब्जेक्ट, पिक अप द नेक्स्ट सब्जेक्ट, फिर रिपीट करो। रेपिटेशन इज द की, जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो 5 दिन ही आपको पढ़ना है, छठे दिन आपको रिविजन करना है, 7वें दिन टेस्ट लेना है। 2 days आर टू बी डेडिकेटेड ओनली फॉर रिविजन एंड टेस्ट्स। अगर ये नहीं करोगे तो जो मैंने सबसे ऊपर बताया था वो चारों का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, वो नहीं बनाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, कितना भी सिलेबस पढ़ लो कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। टेस्ट मैंने आपको बताया 1 day एवरी वीक हैज टू बी डेडिकेटेड टू टेस्ट। आपने एक सेक्शनल टेस्ट लिया किसी एक सब्जेक्ट का, फिर उसको एनालाइज किया, फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट लिया, इट कैन बी आंसर राइटिंग टेस्ट और अनदर एमसीक्यू टेस्ट। मैं रिकमेंड करूंगा, जैसे मैं मान लीजिए क्वांट और मैनेजमेंट से शुरू किया, तो एक टेस्ट क्वांट का लिया 25-30 क्वेश्चन का, एक टेस्ट मैनेजमेंट का लिया। ये टेस्ट खुद भी बना सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियोस में यूट्यूब पे बताया हुआ है, बहुत रिसेंटली भी बताया, तो उनको ढूंढ के देख सकते हो। और फिर एक टेस्ट आपने आंसर राइटिंग का मैनेजमेंट का खुद बना लिया, चैट जीपीटी वगैरह यूज करके, कोर्स में एनरोल्ड हो तो कोर्स में मिलता रहेगा हर हफ्ते। तो आपने 3 टेस्ट हर हफ्ते दिए, एंड दीज 3 टेस्ट आर टू बी रिटन इन 1 single डे। यू बिल्डिंग अप योर स्टैमिना ऑफ टेकिंग अ लॉट ऑफ टेस्ट इन 1 day। फिर उसको अच्छे से एनालाइज किया और फिर अगले दिन रिविजन किया। दैट इज हाउ यू फिनिश अप द एंटायर थिंग। रिविजन मैंने आपको बताया है, एक्टिव रिविजन ही करना है, पैसिव रिविजन नहीं करना है, ठीक है ना। रिविजन, एक्टिव रिविजन किस तरह से होता है, प्लीज सर्च फॉर दैट, मैंने डिटेल में 15-20 मिनट 30 मिनट में बताया है कि एक्टिव रिवीजन किस तरह से किया जाता है। आपने जो भी उस वीक में टॉपिक्स पढ़े हैं उनको आपको रिवाइज करना है, और सब कुछ भूल जाने की कोशिश करो, ज़्यादा फोकस मत करो कि सब कुछ ही याद होना चाहिए। ट्राई करो कि जो मैंने उस हफ्ते पढ़ा है उसको मैं एक्टिवली रिवाइज कर लूँ। करंट अफेयर्स मैंने आपको बोला है 1 hour पढ़ना है हर दिन, इफ यू आर नॉट कवरिंग करंट अफेयर्स थरली। बट जब आप पूरा करंट अफेयर्स कवर करने पे आओगे तो ट्राई करो कि लेट्स से पूरे महीने में 7 दिन मैंने निकाल लिए या 14 दिन मैंने निकाल लिए कि इन 7 दिनों में मैं बस करंट अफेयर्स ही करूंगी या करूंगा।
और फिर बस कुछ नहीं पढ़ रहे हो, पूरे दिन करंट अफेयर्स कर रहे हो। यू स्टार्ट विद PIB 247, खत्म किया, यू देन मूव टू RBI 247, खत्म किया, यू देन मूव टू स्पॉटलाइट, या फिर टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स उठाया, ठीक है ना। प्रायोरिटी में बता देता हूँ, सबसे पहली प्रायोरिटी RBI 247 की, फिर PIB 247 की, उसके बाद स्पॉटलाइट की अभी के लिए। स्पॉटलाइट अभी थोड़ा नीचे भी डाल सकते हो, और रिपोर्ट की अभी प्रायोरिटी ऊपर रख सकते हो, क्योंकि रिपोर्ट्स अभी कवर कर लोगे तो बाद में आसानी होगी। स्पॉटलाइट थोड़ा लेट भी उठाओगे तो चलेगा, ठीक है। ये हमने समझ लिया है। लेट मी नाउ टेक यू टू द टाइम टेबल जो मैंने बनाया हुआ है एक्सेल में, और मैं समझाता हूँ कि इसको यूज़ किस तरह से करना है, क्योंकि शुरू में देखोगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा और ड्रॉप कर दोगे। देखो बहुत मैसिव है, आपको लगेगा यार ये क्या बवाल है, छोड़ देते हैं, अपना कुछ देख लूंगा, ठीक है ना। बट मैं समझा दूंगा तो बहुत आसान हो जाएगा। RBI प्रीलिम्स मेंस की कुछ डेट्स दी हुई हैं, अभी के लिए रेलेवेंट नहीं है, उनको हटा सकते हो क्योंकि वो तो एक्सपेक्टेड हैं। ये कुछ मैंने की टू डूज बताए हुए हैं और की डोंट्स बताए हुए हैं। अभी मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज्ञान दे चुका हूं तो इस पे फोकस नहीं करूंगा, सीधा टाइम टेबल पे आता हूं। जैसे मैनेजमेंट और क्वांट मैंने आपको बताया था साथ में उठाने की ज़रूरत है। अब यहाँ ESI की जगह फाइनेंस भी रख सकते हो, और फाइनेंस की जगह ESI रख सकते हो, ईजी रहेगा थोड़ा सा। कुछ भी कर सकते हो, यू कैन मेक एनी कॉम्बिनेशन यू वांट, डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग अ मैक्सिमम ऑफ 2 सब्जेक्ट्स इन वन डे, नंबर 1 एट अ टाइम। अगर मैनेजमेंट उठाया तो मैनेजमेंट पूरा करो 10 दिन में, उसके साथ साथ क्वांट पूरा करो 10 दिन में, ओके। अब क्योंकि आपके पास 3 महीने हैं तो मैं चाहूंगा कि आप 8 हफ्तों में, 8 हफ्ते मतलब कितने होते हैं, 2 महीने, 2 महीने में आप सिलेबस एक बार अपना पूरा कर सको, जिससे कि थर्ड मंथ में, जैसे ही थर्ड मंथ स्टार्ट होता है, मेरी रिवीजन की साइकिल स्टार्ट हो जाए। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, रेपिटेशन इज द की। अगर रिपीट नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो आप कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी प्रोडिजी हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना ही अच्छे से याद किया हो, भूल जाओगे। यू विल नेवर बी एबल टू रिमेंबर इट। ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे और ये माइंड की स्टडीज के बेसिस पे प्रूवन भी है। तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रेपिटेशन। तो आपको रिपीट करनी है, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिपीट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज याद नहीं रहेगा। तो आपको 2 हफ्तों में, विच मीन्स अ मैक्सिमम ऑफ 14 डेज, यू हैव टू कवर दीज 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एनॉमली दिखेगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वीक 1 एंड वीक 2 मैनेजमेंट सिलेबस एंड क्वांट सिलेबस। अब नीचे आते हैं मैनेजमेंट सिलेबस पे, तो आपको मैनेजमेंट सिलेबस में दिखेगा, यहाँ से मैनेजमेंट सिलेबस स्टार्ट होता है। तो आपको मैनेजमेंट सिलेबस में यहाँ दिखेगा कि यार मैनेजमेंट सिलेबस को तो मैंने 5 वीक्स दिए हुए हैं, ऊपर 2 वीक्स लिखे थे, तो ये क्या गड़बड़ चल रही है कुछ, सम देर इज सम एरर। देखो मैनेजमेंट में 5 वीक्स दिख रहे हैं। ये 5 वीक्स उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने पढ़ाई आज से 6 महीने पहले शुरू कर दी थी, ठीक है। जब आपने अगर दिसंबर में किसी स्टूडेंट ने तैयारी शुरू करी थी तो उसको बहुत अच्छे 5 वीक्स मिले थे। ही और शी गॉट द लग्जरी ऑफ स्पेंडिंग 5 वीक्स ऑन मैनेजमेंट। ये आपको याद भी दिलाता है कि भाई अब तुम्हारे पास वो लग्जरी नहीं है, अब समझ जाओ, अगर एग्जाम निकालना है तो 2 हफ्तों में ये 5 हफ्ते का काम खत्म करना जरूरी है। कैसे करोगे, पहले हफ्ते में आपको वीक 1 और वीक 2 दोनों के जो भी टारगेट्स हैं उसको खत्म करना है। मतलब वीक 1 में 20 घंटे पढ़ना था, वीक 2 में 14 घंटे के वीडियोस थे, मतलब आपको 34 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको एक वीक में खत्म करने जरूरी हैं। आई नो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, प्रोबेबली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ लॉट ऑफ यू, बट आपके पास कोई तरीका बचा नहीं है। अगर आपको एक्चुअली अच्छे से एग्जाम क्लियर करना है तो आपको इधर उधर टहलना है, टाइम पास करना है, थोड़ा बहुत पढ़ के एग्जाम दे देना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग द एग्जाम, तो फिर कुछ भी करो। बट अगर ढंग से एग्जाम देने हैं सिलेबस पूरा करके, तो वीक 1 और वीक 2 ये दोनों हफ्तों के टारगेट्स आपको एक वीक में निपटाने पड़ेंगे। फिर आप वीक 3 और वीक 4, ये जो दोनों हफ्तों के टारगेट्स हैं, ये दिखने में बड़ा लग रहा है नहीं उतना बड़ा। वीक 3 और वीक 4 डिटेल में ज़्यादा लिखा हुआ है मैंने। वीक 3 और वीक 4 के जो टारगेट्स हैं ये आप सेकेंड वीक में निपटाओगे, और ट्राई करोगे कि वीक 5 में मैं थोड़ा बहुत कर लूँ। अगर नहीं करोगे तो वीक 5 को थर्ड वीक में ले जा सकते हो, कि थर्ड वीक में 2-3 दिन में मैं वीक 5 खत्म करूँ। वीक 5 को इसलिए मैंने सबसे नीचे रखा है क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आते हैं, एग्जाम में आते हैं, बट थोड़ी रेलेवेंस कम है और थोड़े आसान भी हैं।
एथिक्स धीरे धीरे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने लगा है, बिजनेस एथिक्स स्पेशली, वहां से एक आध क्वेश्चन आने लगा है, तो उसको ढंग से पढ़ सकते हो। समझ आ गया कि ये प्लानर काम किस तरह से करता है। फिर से बताता हूँ दूसरा सब्जेक्ट उठा के। अब हमें क्वांट भी साथ में पढ़ना है मैनेजमेंट के, और 2 ही हफ्ते हैं मेरे पास क्वांट पढ़ने के लिए। तो मैं ढूंढता हूँ कि क्वांट एग्जैक्टली है कहाँ। देखो सबसे ऊपर मैनेजमेंट आया, मैनेजमेंट के बाद आया इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के बाद आया फाइनेंस, और फाइनेंस के बाद मुझे दिखेगा क्वांट। ठीक है ना। तो जब मुझे क्वांट दिखा, मुझे 2 हफ्तों में खत्म करना है। यहाँ पे सर ने 5 वीक्स दिए हुए हैं कि 5 वीक्स में आप क्वांट पूरा कर सकते हो, लेकिन मुझे यही 5 वीक्स का काम 2 हफ्तों में खत्म करना है। 2 वीक्स में आई हैव टू फिनिश इट ऑफ। देयर फोर आई विल ट्राई एंड कवर 2 वीक्स वर्थ ऑफ टारगेट्स इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ। ये मेरे टारगेट हो गए कि यार ये सारे टॉपिक्स मुझे 1 हफ्ते में खत्म करने हैं। 5 दिन है मेरे पास, सो आई हैव टू ट्राई एंड कवर 2 टॉपिक्स एवरी डे, जिससे कि मैं 5 दिन में सारे टॉपिक्स खत्म कर सकूं। फिर मैं ट्राई करूंगा यार और 2 हफ्तों में, और 2 हफ्तों के या 3 हफ्ते के टारगेट्स, 3 वीक्स के टारगेट्स, लेट मी कवर देम इन 1 वीक ओनली। ये भी ट्राई कर सकते हो कि इन द फर्स्ट वीक यू कवर 2 entire weeks and half of third week. You can create any combination. And whenever you're done with something, then you write here yes or no. It creates an accountability for you so that you can yourself see what are you covering and what are you not covering. Okay. So this is how you cover all the topics one by one. अब इसमें एडवांटेज क्या है इस टाइम टेबल को देखने का, इस टाइम टेबल को रखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है, along with your accountability and your understanding what all do I have to cover today. Another advantage is you have a direct access to an entire thing, an entire syllabus as per me that you need to cover. For example, if you look at the official syllabus भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको बहुत कम लगेगा, ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत ही कम है। जैसे फाइनेंस का उठाओगे तो इसमें बस फाइनेंशियल सिस्टम लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लिखा हुआ है। देखो ना कितना छोटा छोटा लिखा हुआ है, बस फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब नाउ इफ you Google functions of RBI, you'll just get 10-15 functions of RBI. You will probably read it and you will feel functions of RBI is over, but it's not over. There's a lot to reading about Reserve Bank of India. ये मैंने आपको पूरे सिलेबस में दिया हुआ है. Let's come to the syllabus that I have created for you. तो अगर मैं आपको फाइनेंस को उठाऊं तो यहाँ पर फंक्शंस ऑफ आरबीआई, यहाँ पर देखो डिटेल में मेंशन है। ये सब रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर आता है, इतना सारा। इसमें आरबीआई सेबी नाबार्ड सारी इन्वॉल्व हैं, लेकिन सबसे पहले आरबीआई देख लेते हैं। ओरिजिन ऑफ आरबीआई, स्ट्रक्चर, ब्रांचेज एंड ऑफिसेज, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, अप्रोचेज और मॉडल्स, सब्सिडियरीज ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, पेमेंट सिस्टम, एनडीएस, फिर आ गया सेबी और नाबार्ड और सिडबी और नाफिड, एनएचबी, एग्जिम, इन सब के ऊपर। अब देखो नाफिड, एग्जिम, एनएचबी, ऑल ऑफ दिस इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस, बट लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन नाफिड। तो ये सब आपको यहाँ से पता लगेगा, एंड दिस इज हाउ you have a more detailed understanding of the syllabus itself. That is what will help you read everything in more detail strictly according to the need of the exam. कि एग्जाम में मुझे ये सारे टॉपिक्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं जो सर ने यहाँ पे टाइम टेबल में दे दिए हैं. दैट इज समथिंग दैट यू गेटिंग. तो अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो भी ये टाइम टेबल आपको इस तरह से हेल्प कर रहा है. ईएसआई में भी ऐसे ही है. ईएसआई में भी मैंने आपको यहाँ डिटेल में दिया हुआ है कि पॉवर्टी के अंदर क्या पढ़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट में नेचर, मेजर्स, टाइप्स, कॉजेज, सर्वेज, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, फिलिप्स कर्व, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं है. सिलेबस में बस आपको दे दिया अनएम्प्लॉयमेंट, दैट्स इट. अब इससे क्या निकालोगे, क्या पढ़ोगे, क्या नहीं पढ़ोगे, कौन सी बुक से पढ़ोगे, यू विल गेट कंफ्यूज्ड. सो इवन इफ यू वांट टू रीड इट ऑन योर सेल्फ स्टडी करना है तो इन सबको गूगल भी कर लोगे ना, या चैट जीपीटी पे भी मांग लोगे एक एक पेज या दो दो पेज के आंसर्स, तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा यहाँ से. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कवर द एंटायर प्लानर, द एंटायर टाइम टेबल. मैं आपको पूरा एक बार टाइम टेबल समझा देता हूँ. फर्स्ट 2 वीक्स में मैनेजमेंट एंड क्वांट सिलेबस, वीक 2 to वीक 4 में ESI एंड रीजनिंग सिलेबस, वीक 5 एंड वीक 6 फाइनेंस एंड इंग्लिश सिलेबस, वीक 7 एंड वीक 8 टॉपिक वाइज करंट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ट्राई करो कि इन 2 हफ्तों में ये तो एटलीस्ट खत्म कर ही लो, उसके साथ साथ और करंट अफेयर्स उठा सकोगे तो बेटर है.
आपने 1-2 दिन का ब्रेक लिया, उसके बाद आपने रिवीजन शुरू किया। वीक 9 में यू रिवाइज एंटायर मैनेजमेंट, आपने एक सब्जेक्ट उठाया और उसके साथ करंट अफेयर्स उठाया मंथली, पीआईबी 247, आरबीआई 247। अब यहाँ से आपका करंट जो है वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। एक बार आपने करंट अफेयर्स डिटेल में स्टार्ट कर दिया, then it is like half of your day is on current and half of your day is on syllabus. That is how you balance it out. अदरवाइज कभी बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाओगे। फिर वीक 9 में आपने मैनेजमेंट रिवीजन के बाद ईएसआई रिवीजन किया और मंथली करंट चलाए। वीक 10 में आपने फाइनेंस का रिवीजन किया, मंथली करंट चल ही रहा है आपके आधे दिन में। वीक 10 में आपने क्वांट और रीजनिंग दोनों का रिवीजन किया, मंथली करंट आपका चल ही रहा है। फिर आपने आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस टेस्ट दोनों जोड़ दिए। फिर वीक 11 में टॉपिक वाइज करंट और गवर्नमेंट स्कीम्स का फिर से रिवीजन किया। अब आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया जो भी पढ़ा था, फिर से रिपीट करोगे। वीक 12 में मैनेजमेंट को रिवाइज किया, साथ में मंथली करंट जो आ रहा है नया वो पढ़ रहे हो। वीक 12 में फिर से ईएसआई रिवीजन किया, मंथली करंट पढ़ा। वीक 12 में फाइनेंस रिवीजन किया, मंथली करंट किया। एक और चीज आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि जैसे जैसे मेरी रिवीजन की साइकिल रिपीट हो रही है, आई एम ट्राइंग टू रिवाइज मोर इन लेस टाइम। पहले मैनेजमेंट के रिवीजन में मुझे 5 दिन लगे, सबसे पहले टाइम कवर किया तो 2 वीक्स लगे, फिर रिवाइज किया तो 5 दिन लगे, फिर से रिवाइज किया तो 3 दिन लगे, फिर से रिवाइज किया तो 2 दिन लगे। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू डू दिस। अगर ये नहीं कर पाओगे तो रिवीजन इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक्टिव रिवीजन करो। एक्टिव रिवीजन करोगे तभी ये कर पाओगे, अदरवाइज ये नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई होप दिस इज गुड इनफ, क्लीन इनफ, अंडरस्टैंडेबल इनफ। ये पूरा एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। मेक श्योर दैट यू यूज इट, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट। समझोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है इस एक्सेल शीट का। अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे रख लोगे, कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है ना? दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू वॉन्ट मी टू टॉक अबाउट सर्टन थिंग्स, सर्टन प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग, तो वो कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका सोल्यूशन बताइए। अगर मुझे लगेगा इट्स अ प्रॉब्लम दैट आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट बिफोर या फिर काफ़ी टाइम हो गया है, आई वुड want to and I would try to talk about it as soon as possible. ठीक है, this is all from my side. Keep studying hard. All the best. Bye bye. Jai Hind.